Minimize this video if you're sleeping. The Curious Case of Sahil Adimit sounds like a Christopher Nolan movie, doesn't it? Well, it's not, but let's dig into this idea. Imagine you haven't seen Interstellar yet, and you're told it was directed by someone named Issa Noman instead of Christopher Nolan. How does that feel? Your brain instantly compares them, and no surprise, Nolan wins. It's not because you've seen Issa's work or judged it fairly. It's because, deep down, we associate certain names with excellence and others with doubt. Think about it. Why does a name like Nolan automatically sound more credible than Issa? It's not about skill, vision, or merit. It's about the unconscious bias we've internalized over years of exposure to Western dominance in storytelling. Names like Nolan are celebrated, while names like Issa are questioned. And this isn't just about films, it's a reflection of a bigger problem in how we perceive value and capability based on culture and identity. Sahil Adim boldly confronts a harsh reality, that is our collective abandonment of the Holy Quran as a guiding framework. He argues that this isn't just negligence, it's a psychological surrender to Western dominance. In his view, we've stopped seeing ourselves as the torchbearers of divine wisdom and have instead become passive consumers of imported ideals. Inferior psychology doesn't require chains. It thrives in the mind, where neurons form knots of submission. Sahil Adim dismantles this mental entrapment, questioning why Muslims, the custodians of the Quran, have accepted a narrative of defeat. When a nation loses to another, it adopts the victor's systems, culture, and even self-perception, believing its own heritage to be obsolete. This mental slavery raises a troubling question. If the followers of the Quran are in such decline, does it reflect on the book itself? Sahil flips the narrative, declaring that the Quran was never meant for people of low self-esteem. It's for those who draw their worth from the Creator, rejecting all notions of inferiority. True faith liberates. It doesn't bow to man-made dominance. Sahil unravels this phenomenon using nothing but the Quran and pure common sense. इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह ताला ने वो काम करवा दिया है कि ग्लोबल लेजिस्लेशन डिवाइन हो गया था। इसका मतलब बताता हूँ कि दुनिया में ज़्यादातर इंतज़ाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के थ्रू, अल्लाह ताला की किताबों के थ्रू निज़ाम, कानून, कवानीन बन रहे थे। 1600 तब तक या तो मुसलमानों के खित्तों में कुरान चलता था या फिर यूरोप के खित्तों में बाइबल चलती थी। यहूदियों की तो खैर तादाद ही कम थी, तो तौरात का नाम लेना इसमें कोई ज्यादा कंपैरिजन रैशनल नहीं होगा, मगर पूरी दुनिया में इंतजाम इंसानों को अल्लाह के नाम पे लिया जा रहा था। मुसलमानों के खित्ते में जो उमर खत्ताब ने हमें दिया था, वहां में कुरान के इंतजाम होते थे और बाकी खित्तों में बाइबल चलती थी। 3000 साल तक ये काम ऐसे हुआ है। 1600 की सेंचुरी जो है ना, वो यूरोप की लड़ाई की सेंचुरी। बाइबल तो लिखी है पॉल भाई साहब ने आदि। पॉल तो उनका साहबी भी नहीं था, ताबी था। बाइबल सिर्फ नसीहतें करती है, लेजिस्लेशन और लॉज नहीं बता रही। तौरात लॉ बताती है, कुरान भी लॉ बताता है, बाइबल नहीं बताती। मगर तमिल नहीं कि वो बताती भी थी उनके कोई ना कोई वर्जन में तफसीर में, तो उन्होंने लॉज बाइबल से लिए थे। लोग इंसानी लॉज को अल्लाह के नाम के ऊपर इम्प्लीमेंट हुए में बर्दाश्त नहीं कर सक रहे थे। और जाहिर है कैसे बर्दाश्त करते, मैं और आप भी ना करते। वो वाली बाइबल आप पे इम्प्लाई की जाए तो आप भी ना बर्दाश्त करें। वो क्रिश्चियन ने ही फिर बगावत कर दी अपनी किताब के खिलाफ। चर्च की लड़ाई हो गई, चर्च तो पावर में था, हर पावर सेक्टर चर्च के पास था, सारा पैसा उन्होंने पकड़ा हुआ था। ये लोगों ने लड़ाई करके चर्च को उखेड़ के फेंक दिया। 30-40 लाख बंदा पर ईयर किल हो रहा था। इस एनलाइटनमेंट की द ग्रेट वॉर के अंदर 30 साल लड़ाई चलती रही, 30 साल, और चर्च उखेड़ के फेंक दिया इस यूरोपियन ने। इन्होंने कहा आप हार गए हो, अब दोबारा बाइबल का नाम ना लेना। हम तुम्हारे पे एहसान कर रहे हैं कि तुम्हें बाइबल पब्लिश करने दे रहे हैं, अपने अपने घर में जाके पूजा पाठ कर, चल शाबाश, हम बनाएंगे कानून। और इन्होंने फिर कवानीन बनाने शुरू कर दी। अब आप देखेंगे यूरोप में कहीं पे भी बाइबल लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं। अमेरिका तो 1776 में बना था, तो तब तक तो अमेरिका को तो 7 नस्लें हो चुकी हुई थी, तो अमेरिका भी उसी लॉ के अंदर आया जिस लॉ में इस वक्त यूरोप था। तो इस वक्त यूरोप में बाइबल काम नहीं करता। मुसलमानों को पता भी नहीं चला, साइड साइड पे सारा वाकया हो गया। हम उस वक्त खिलाफत एंजॉय कर रहे थे। 3000 साल तक अल्लाह के नाम के ऊपर कवानीन चल रहे थे। जैसे ही ये लड़ाई हुई, उसके फौरन बाद कवानीन अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह ने बना, इंसानों ने बनना शुरू कर दिए। मुसलमानों के पास कवानीन अल्लाह की किताब से आ रहे थे, एक्सेप्ट 3 मार्च
1924 को कहा कि हाँ हमारा भी कानून तुम ऐसा करो, बन्नों से ही बनवा लो, और खिलाफत हमने तोड़ के 57 मुल्क बना दिए। हमने तो नहीं बनाए, ऑफ कोर्स किसने बनाए? विंस्टन चर्चिल ने। लिटरली एक आदमी निकला है, उसने अपने घर पे व्हाइट कलर के बोर्ड के ऊपर लकीरें खींची। 3 बंदे थे उस मीटिंग में, उस बंदे ने लकीरें खींची, ये वाला हिस्सा इसको दे दो, ये वाला हिस्सा इसको दे दो, ये मेरा जानने वाला है, इससे ये वाली चीज लेके ये वाला हिस्सा इसको दे देना, और इस तरह 57 मुल्क बने हमारे। दिस इज हाउ एवरी नेशन वर्क्स। कैसे? जब आप किसी एक कौम के ऊपर फाते हो जाते हैं तो फिर आप जो मर्जी करें, फिर आप जो मर्जी करें, उसको ताबे होना पड़ता है। और क्या हुआ फिर? हमारे ऊपर भी वही हुआ, जो इंग्लैंड के कवानीन और लॉ थे वो हमारे ऊपर अप्लाई हो गए। पहले होते थे अल्लाह के कवानीन, अब होते हैं इंसान के कवानीन। अब इंग्लैंड ने बताना था कि पाकिस्तान के अंदर कौन से कानून है, इंडिया में कौन से कानून है, तो अरब में कौन से कवानीन है। ओह एवरीवेयर, जहां जहां इंग्लैंड, क्योंकि वो जीत गए थे जंग, जो जंग जीत जाता है उसका कानून चलता है। मसला कानून तक का होता ना तो खैर थी। मसला ये था कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें बताया था कुरान पाक में, और हम देख नहीं रहे थे। सूरह मुम्तहिना की आयत में लगाई है कि रब्बना ला तजअलना फितना, हम या अल्लाह हमें ना फितना बना दी। रब्बना ला तजअलना फितनतुल लिल्लज़ीना कफरू, कुफार के लिए फितना ना बना दे। किसको? हमें। हमें फितना ना बना दे कुफार के लिए। ये नफ्सियात की कौन सी ट्रेनिंग हो रही है हमें, हम क्यों नहीं ले रहे थे? जब एक कौम मफ्तू होती है, मफ्तू का मतलब होता है जिसको फतह कर लिया गया, तो जो फाते कौम होती है ना, उसके सामने सबसे पहले अपने दीन की कुर्बानी देती है। याद रखना इस बात को, ये कॉमन सेंस है। क्यों? क्योंकि बेसिक साइकोलॉजी हमारी कि मेरी और आपकी लड़ाई होगी, आप अगर हार गए तो आपकी सारी चीजें मेरे से बदतर और मेरी सारी चीजें आपसे बरतर हो जाती। सबसे पहले तो आपका फलसफा में चीज देता, इतना ही तेरा दीन काम का होता तो तू फाते होता। मेरा दीन काम का है तो मैं फाते हूँ, तो तेरा दीन नाकिस है। ये सबसे पहली कुर्बानी देती है मफ्तू कौम। ये है अल्लाह ताला जी शाह फरमा रहे हैं कि ये ना हो हमारे ऊपर ये फितना आ जाए और हम उनके ऊपर फितना बन जाए, कि फाते कौम समझे कि इनका दीन ही 2 नंबर था, इसलिए तो ये हारे हैं। हालांकि उसका ना इधर का ताल्लुक था ना उधर का ताल्लुक था, मगर मफ्तू कौम सबसे पहले गला काटती है अपनी अना का, अपनी सेल्फ एस्टीम का, अपने फाते के सामने, अपने मास्टर के सामने जो जीत जाता है। सो ये है आयत में अल्लाह ताला बता रहे कि जैसे ही एक डोमिनेंट ग्रुप अपना सिस्टम एस्टेब्लिश करता है, तो जिसके ऊपर वो डोमिनेट होता है, जिसको उसने डोमिनेट किया होता है, जो उसके ताबे आ रहा था, सबसे पहले वो उसके फलसफे को ज़बह करता है, उसके सामने जान के उसकी अना को ठेस पहुंचाने के लिए। हमें इस बात का पता ही नहीं है, हम उस नस्ल के अंदर पैदा हुए हैं, उन 2 नस्लों के अंदर, कि जो पहले से खास किस्म की साइकोलॉजी रखती थी। मसला ये नहीं है कि मैंने अपना फलसफा ज़बह कर दिया जी, मेरा दीन नाकिस था, तेरा दीन जो है ना बंदों का बनाया हुआ दीन बिल्कुल ठीक है, मेरा अल्लाह का बनाया हुआ दीन नाकिस। खाली ये मसला नहीं है। मसला ये है कि मैंने जिस तरीके के ऊपर आप जिंदा रहना है, वो तरीके सारे के सारे तेरे बनाए हुए हैं, और मेरे बच्चों ने कभी भी नहीं ये सोचना कि सर वो मास्टर आप स्लेव, तो इसलिए तो हम मान लेंगे अंदर से कि इस्लाम ठीक है और उनका सिस्टम गलत है, और हम एक नई स्ट्रेटजी बना के टेक ओवर कर लेंगे। नहीं, ऐसे होता ही नहीं। अगर आप उनके पूरे के पूरे सिस्टम और लॉज के अंडर आ जाएं, तो आपके बच्चे उन लॉज की पैरवी करते हुए जब आपको देखते हैं, तो उसके अंदर वो तमाम तर नफ्सियात प्रो मास्टर बना लेते हैं। इसलिए हम सबको घोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि इंसान की नफ्सियात बनी ही ऐसे है। जो भी बंदा जीतेगा उसकी हर चीज को सुपीरियर साइकोलॉजी के अंदर डाल दिया जाएगा, और जो हारेगा उसकी हर अच्छी और सही चीज को भी इंफीरियर तरीके से ट्रीट किया जाएगा। कि रब्बना ला तजअलना फितरतल लिल्लज़ीना कफरू, कि हम काफिर के लिए फितना और काफिर हमारे लिए फितना ना बना देना। कैसे? या अल्लाह हमें उनके ताबे ना कर देना, वो कोई ऐसी जंग ना जीत जाए हमसे कि उसके बाद दीन हमारा को प्रेजेंट करने के काबिल ना रहे, हम अपना दीन भी, जो कि उन्हीं के नुकसान में जाकर यार आखिरत में तो हमें पता क्या होना। अमेरिका में या कनाडा में दावत देते हैं तो वो सिंपल सवाल करते हैं, बहुत सी आला किताब है आपकी, अल्लाह ने लिखी है जी, सही लिखा हुआ इसमें जो कोई लिखा हुआ है जी, 2 अरब फॉलोअर्स है इसके जी, और 2 अरब फॉलोअर्स के ये हालात हैं, एक किताब इनको इन हालात से नहीं निकाल सकी, मुझे क्यों दे रहा है? जब भी कुरान का फॉलोअर देखा, पिटा हुआ देखा है, जमीन पे रेंगता हुआ देखा है, झूठ फ्रॉड चोरी जना करता हुआ देखा है, और ऊपर से अपने आप को छुपाता हुआ देखा है, तो मैं कैसे मान लूं कि तेरी ये किताब हमें, हम तो पहले ही इतने अच्छे चल रहे हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं इस चीज की। उनको फिर ये समझाना पड़ता है कि सर हम मफ्तू हैं, किताब ठीक थी, मफ्तू ऐसी हकता ही करते हैं, हमने अभी तक अपने आप को फतह नहीं किया हुआ, तुम्हें कैसे फतह करेंगे? तो जब तक हम अपने आप को, पाकिस्तान की बात करो, हम अपने पाकिस्तान फतह कर लिया ना आप लोगों ने, तो आप उससे निकल जाएंगे, उस मफ्तू साइकोलॉजी से। क्यूरियस केस ऑफ साहिल अदीम। इस वीडियो को बनाने का एक मकसद है, और वो ये कि मैं साहिल अदीम का मुकदमा आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं, और साथ में खुद ये समझ सकूं कि अब तक
साहिल अदीम का मुकदमा आपको क्यों समझ में नहीं आया। पहला पार्ट है डायग्नोसिस का, कि आखिर उम्मत को मसला क्या है। आई होप आपको अब तक टाइमलाइन सारी समझ आ चुकी होगी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके 3000 साल तक जो लेजिस्लेशन है इस कुरान अर्ज़ के ऊपर वो डिवाइन रही। क्रिश्चियन डायस्पोरा के अंदर बाइबल लेजिस्लेशन का हिस्सा थी, मुस्लिम डायस्पोरा के अंदर कुरान लेजिस्लेशन का हिस्सा था। फिर क्या होता है, यूरोप के अंदर आती है एज ऑफ एनलाइटनमेंट, चर्च को खेड़ के फेंक देते हैं, बाइबल को लेजिस्लेशन से निकाल देते हैं और यूरोप की सेकुलराइजेशन हो जाती है। इधर अभी मामला वैसे ही चल रहे हैं, बट पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 खिलाफत खत्म होने के बाद क्या होता है, मुसलमानों को शिकस्त हो जाती है यूरोप के हाथों। जब भी किसी इलाके को, किसी सोसाइटी को शिकस्त होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पावर उनके हाथ से नहीं जाती, ज़मीन उनके हाथ से नहीं जाती, उनकी मेंटालिटी भी उनके हाथ से जाती है, उनकी साइकोलॉजी इन्फीरियर हो जाती है, डिफीटेड हो जाती है। और ये डिफीटेड इन्फीरियर साइकोलॉजी नस्ल दर नस्ल आगे चलती रहती है। और फिर इस डिफीटेड साइकोलॉजी, इस इन्फीरियर साइकोलॉजी की मैनिफेस्टेशन ऐसे होती है कि डेफिनेशंस करप्ट हो जाती हैं। We are timid little midgets. अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूंगा जिससे मैं अपना केस और इवेंचुअली साहिलुद्दीन का केस प्रूव करने की कोशिश करूंगा। बात हो रही है इन्फीरियर साइकोलॉजी की। जब भी कोई कौम शिकस्त खाती है तो उसके अंदर इन्फीरियर साइकोलॉजी जन्म लेती है और उसकी मैनिफेस्टेशन, उसके इफ़ेक्ट्स के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। एक मगलूब कौम के अंदर सबसे पहले जो चीज़ सामने आती है वो है लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड पर्पस। जब भी कोई कौम मगलूब होती है तो उसकी सेल्फ वर्थ ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर एहसास कमतरी डेवलप हो जाती है जिसको हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और उस कौम के अंदर अगली नस्लें एक महकूम जहनीत के साथ कुर्बान चढ़ती हैं। बच्चे ऐसे माहौल में पलते हैं कि जहाँ उनके आबा व अजदाद की शिकस्त को तस्लीम कर लिया जाता है बगैर किसी सवाल के। और वो महकूम और मगलूब नस्ल ये मान कर बड़ी होती है कि शायद उनकी अपनी ही शनाख्त वीकर है, आउटडेटेड है, इन्फीरियर है। सेल्फ वर्थ और पर्पस के खात्मे के साथ साथ उनकी एजुकेशनल कंडीशनिंग भी होती है। उनके जो तालीमी निज़ाम है उसमें भी जहनी गुलामी सराहियत कर जाती है। जितनी भी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ होती हैं उनके जो एजुकेशनल सिस्टम होते हैं वो भी विक्टर यानी कि यूरोप से इनहेरिट होते हैं। आई कुड हैव अंडरस्टूड कि अगर आप लिटरेचर में जाते तो आपने फिर शेक्सपियर ही पढ़ना था और क्या करते। आप अगर सोशल साइंसेज में जाते वही वाले एक्सपेरिमेंट्स के डिविडेंड्स आपने भी री एक्सपेरिमेंट करने थे। आई गेट दैट। जिससे ये तसव्वुर जाता है कि शायद उनका जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी सुपीरियर है हमसे, यानी कि महकूमों से, जिससे नौजवान नस्ल के अंदर अपनी हिस्ट्री, अपनी वैल्यूज़, अपने कल्चर, इससे लाताल्लुकी, बेगानगी पैदा हो जाती है। इस एजुकेशनल कंडीशनिंग के रिज़ल्ट के अंदर क्या होता है कि जो मगलूब कौम होती है उनका अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज़, अपनी हिस्ट्री तो साइड पे हो ही जाती है। पल के साथ-साथ जो विक्टर है यानी यूरोप, उसका बयानिया मतलब उसका नैरेटिव वो भी एजुकेशनल सिस्टम से पुश किया जाता है। जिससे जो यूथ है, जो अगली नस्ल है, न्यू जनरेशन है, वो क्या करती है, वो रेप्लिकास क्रिएट करती है विक्टर के कल्चर की, विक्टर के नॉर्म्स की, इसकी वैल्यूज़ की। उस गेट से लेके इस रूम तक जितनी भी कानों में आवाज मेरी आई है सब फॉलोअर्स की आई है। एजुकेशनल कंडीशनिंग के बाद समाजी दबाव और तकलीद मतलब सोशल प्रेशर और कन्फर्मिटी वो भी गुलाम या महकूम कौम के अंदर आ जाती है। जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस की बजाय सबमिशन के अंदर चली जाती है और उनके लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन होती है वो भी ये ही बन के रह जाती है कि कौन इस विक्टर के सिस्टम के अंदर बेटर परफॉर्म कर रहा है या जो उसके साथ जम अच्छी तरह हो रहा है, मिक्सअप अच्छी तरह हो रहा है। ये सक्सेस की डेफिनेशन बन जाती है। जो वालिदैन होते हैं वो भी बच्चों को यही तलकीन करते हैं कि जो सक्सेस है या जो सर्वाइवल है उसके लिए ज़रूरी है कि हम विक्टर के सिस्टम के साथ हम आहंग हो जाएं। जिससे क्या होता है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो तनकीदी और रेवोल्यूशनरी और रेजिस्टेंस है कि हम अपनी ही आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करें, वो दब जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो लीडर हैं, जो बेदारी का दर्स देते थे, जो कि अपनी आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करने के चैंपियंस थे, उनको हिस्ट्री से भुला दिया जाता है या उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि बेदारी की रविश ही ख़त्म हो जाती है। ये सोच ही बच्चों में या नई नस्ल के अंदर पैदा ही नहीं होती और जब रोल मॉडल्स नहीं होते तो पीछे रह क्या जाता है? कुछ भी नहीं।
उनके पास जो यूथ होती है, जो जनरेशन होती है नेक्स्ट, उसके पास रोड मैप ही नहीं होता कि वो अपनी आइडेंटिटी को कैसे दोबारा रिटेन कर सकें या रीगेन कर सकें। उसके बाद क्या होता है कि जो डोमिनेशन के बाद जो विक्टर की मटेरियलिज्म है, उसको जो मगलूब कौमें हैं, उनके लिए एक बेंचमार्क के तौर पर प्रेज़ेंट किया जाता है, जिससे एक डेविएशन क्रिएट होती है कि वो अपनी आइडेंटिटी को परस्यू करने के लिए, उसको रिवाइव करने की जदोजहद से पीछे हट जाएँ और मटेरियलिज़म के पीछे भागें, क्योंकि विक्टर का वो बेंचमार्क सेट हो चुका होता है। उनकी फॉल्स सेल्फ एस्टीम कहाँ से ले रहे हैं वो अपने इनहेरिटेड इंफीरियर साइकोलॉजी में आए थे, इसीलिए सीएसएस करोड़ पे बड़ी गाड़ियां, खूबसूरत औरतें और 6 बीवियां और 16 बच्चे और कॉर्नर प्लॉट, ये कहाँ से आपको क्यों पता है? You shouldn't even know about these terminals. You're too young to know this kind of disease. But no, it's not just the fact that you know that, you already aspire for that. How are you aspiring for more wives and bigger cars and corner plots and dollar amounts? Somebody fed that into you. वो कहाँ से आ रही थी? वो पुरानी जनरेशन्स के अरमान थे जो निकल रहे थे, वो अरमान इंफीरियर साइकोलॉजी से आ रहे थे, और इसीलिए आपका वर्ल्ड व्यू ऐसे बना। और इस मटेरियलिज्म की परसूट से अपनी आइडेंटिटी की जो स्ट्रगल है या जो उसको रिवाइव करने की जदोजहद है, वो आउटडेट हो जाती है या इररेलेवेंट हो जाती है। दुनिया ने हमें इस काबिल नहीं छोड़ना कि हम डॉलर से नीचे आ सके कहीं पे, या डॉलर से लेफ्ट या राइट हो सके। मैं और आप रोज़ दुआएं करते हैं बड़े घर की, गाड़ी की। जिस रश्क से हम बड़ी गाड़ी को इस वक्त देख रहे हैं ना, जिस रश्क से खूबसूरत औरतों को देख रहे हैं, ये हमें सिखाया गया है, ये फितरा नहीं है हमारी। somebody trained us. Who is that somebody? वो स्कूल का सीनियर था या मामू थे, छोटे मामू थे, जो साथ लेके यशियाँ करवाते थे बचपन में। जहाँ से भी आई है कहानी, किसी ने शुरू की है, चूँकि हमने देखा सारे ये खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है यही है हकीकत। ये जो डिफेटिज्म का साइकिल है, ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का साइकिल है, ये अपने आप को दोहराता रहता है, जिससे जो जनरेशन्स होती हैं उसके अंदर ये चीज़, ये बयानिया ये घर कर लेता है कि हम तो हैं ही मगलूब, हम क्या उसे कहते हैं, गलबा दोबारा नहीं देख सकते, और गलबे से भी पहले जो आइडेंटिटी है हमारी, हम उसको भी रिवाइव नहीं कर सकते, जिससे जो आइडेंटिटी के रिवाइवल की जदोजहद है वो भी दम तोड़ देती है। और ऐसे हालात में जो डिफेटिज्म है उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। अब ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं इंफीरियर साइकोलॉजी से रिलेटेड, ये कॉमन सेंसिकल थे, ये ऑब्वियस थे, मतलब ये इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आप थ्रू जो लिटिल बिट ऑफ नॉलेज ऑफ डिडक्शन है उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, और आपकी ऑब्जर्वेशन के अंदर भी ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। बट स्टिल कुछ लोग अभी भी इसको मानने से इनकारी होंगे। उनके लिए मैं कुछ स्टडीज़ आपको प्रेज़ेंट करूँगा जो कि वैलिडेट करेंगी कि ये एग्ज़िस्ट करती है। सबसे पहले 1927 में अल्फ्रेड एडलर ने अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर के अंदर इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किए, जिसके अंदर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो डोमिनेटेड सोसाइटीज़ होती हैं वो विक्टर्स को मिमिक करती हैं, वो अपनी ही कल्चरल आइडेंटिटी को विथड्रॉ कर देती हैं। जिसके बाद 61 के अंदर फ्रांस फैनन द रेस्ट ऑफ द अर्थ के अंदर वो भी यही प्रेजेंट करते हैं, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है उनकी, कि कैसे जितने भी पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं वो जो विक्टर्स हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं, उनकी सुपीरियरिटी की वजह से अपनी आइडेंटिटी को विथड्रॉ कर देते हैं। फ्रांस फैनन के बाद 2011 के अंदर नटाल कॉलोनियल मेंटालिटी प्रेजेंट करते हैं। कॉलोनियल मेंटालिटी बेसिकली एक बिलीफ है कॉलोनाइज्ड का, यानी महकूमों का बिलीफ है कि जो गालिब हैं, मगलूबों का बिलीफ है कि जो गालिब हैं हम पर, उनकी प्रैक्टिसेस, उनकी कल्चर, उनकी वैल्यूज़ हमारे से फार सुपीरियर है। और इसके ऊपर उन्होंने CMS स्केल, कॉलोनियल मेंटालिटी स्केल भी प्रेजेंट किया, और ये स्केल भी ये जांचने के लिए है कि कितनी कॉलोनियल मेंटालिटी किसी ग्रुप ऑफ पीपल या किसी सब्जेक्ट के अंदर किस कदर सराहियत कर गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं पोस्ट कॉलोनियल एरा के ऊपर, जो कि एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप रिसर्च करना चाहें तो आपको बहुत डाटा मिल जाएगा। इन सारी स्टडीज़ का नतीजा अगर निकाला जाए तो वो यही है कि जब भी गालिब मगलूब के ऊपर गलबा पा लेता है तो मगलूब की साइकोलॉजी इन्फीरियर हो जाती है, और जो गालिब होता है उसकी साइकोलॉजी सुपीरियर हो जाती है। और जिसके रिजल्ट के अंदर क्या होता है
कि जो मगलूब होता है वो अपनी ही आइडेंटिटी से एलियनेट हो जाता है, उसके बिलीव्स शैटर हो जाते हैं, उसकी जो परसूट है वो भी जो विक्टर होता है या जो गालिब होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। मतलब इनडायरेक्टली जो भी गालिब डायरेक्ट करता है मगलूब को, वो उसी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट शुरू कर देता है। और आज आप देखते हैं कि कैसे वेस्टर्नाइजेशन किस स्पीड से हमारे अंदर सराहियत कर रही है। मोस्ट ओबीडियंट टू ऑल द पॉलिसीज। देखना अभी खुद अपने बच्चे रेनबो के फ्रॉक पाकिस्तानी देसी आंटियां कुछ सी सी के पहनाया करेंगी। देखें अभी आप जिस लेवल की इनको ओबीडियंस की इस वक्त जो है ना, अगर नहीं नहीं बस जहां पे हैं जैसा देश वैसा बेस हमें निकाल देंगे। अब मेरे ख्याल में पीछे कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हमारी साइकोलॉजी पिछले कई नस्लों से इन्फीरियर हो चुकी है। हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। ये असली गुलाम, ये असली नौकर ये आया दुनिया में। इससे अच्छे तो कोई बूट पॉलिश कर ही नहीं सकता ना दुनिया में। ठीक है, पॉलिश के ऊपर पॉलिश कर देता है, ये इतना जबरदस्त है। सेकंड कोट सर, सेकंड कोट, आई कैन सी माय फेस बेटर इन द सेकंड कोट। ये है हमारे। तो फिर इन्होंने क्या करना है? ये इंटेलेक्चुअलिज्म की बातें करेंगे, ये वॉरफेयर ये रेजिस्ट करेंगे। आई किन में ये तो शुक्र है ट्रंप ने मजहब बदलने का नहीं कह दिया। मैं बता रहा, इन्होंने उसके भी फतवे ले लेने थे कि हम सिर्फ 5 साल के कैमरे के लिए जिमी हुई जमशेद से क्रॉस पहनना, 5 साल के लिए हमने फतवा लिया है कि हम क्रॉस पहना करेंगे। ये हालात हैं इनके। जब तक ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी आइडेंटिटी को रिवाइव नहीं कर सकते। इसी वजह से साहिल दीन की बेतहाशा कैंपेन्स हैं जिसका टाइटल ही ये है, क्राइसिस ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, जिस वजह से उनका हैशटैग मुस्लिम आइडेंटिटी हर जगह यूज़ होता है। आई एम श्योर यू गाइस नो दिस। किसी भी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए उसका डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम ये जान नहीं लेते कि मसला क्या है तब तक हम ठीक क्या करेंगे। एक फ़न फैक्ट के ऊपर मैं आपको एक डोल टेस्ट के बारे में भी बताता हूँ कि जो कि एक मशहूर डोल टेस्ट कंडक्ट हुआ था 1940 के अंदर, जिसे हम क्लार्क एंड कैनेथ डोल टेस्ट भी कहते हैं, जिसके अंदर जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे, जो ब्लैक बच्चे थे, उनको 4 डोल्स दी गई, जिसके 2 डोल्स का कलर जो था वो लाइट स्किन कलर था और बाकी 2 डोल्स थी उनका कलर डार्क था। तो उन बच्चों से पूछा, उन बच्चों से उन डोल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस किए गए, जैसे कि कौन सी डोल खूबसूरत है, क्यों खूबसूरत है, कौन सी डोल बदसूरत है, क्यों बदसूरत है, और आप किस डोल से मुशाबियत रखते हैं, या आप कि कौन सी डोल आपकी जैसी लगती है। जो मेजॉरिटी अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे होते हैं वो लाइट स्किन कलर की डोल्स को प्रेफर करते हैं। उनको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लाइक अच्छे एट्रीब्यूट्स लाइक प्रिटी गुड, इस तरह के एट्रीब्यूट्स उनको स्किन कलर की जो डोल्स होती है उनके लिए असाइन करते हैं। जबकि जो ब्लैक कलर की डोल्स होती हैं या जो डार्क स्किन डोल्स होती हैं उनको वो अगली बैड यानी नेगेटिव जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनसे असाइन करते हैं। और जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि आप किससे मुशाबियत रखते हैं तो वो उसके ऊपर हेजिटेंट होते हैं। कुछ लोग जवाब देते हैं लाइट स्किन का और कुछ लोग जवाब देने से ही इनकार कर देते हैं, और कुछ तो इस फैक्ट से भी डिनाई कर देते हैं कि जो ब्लैक डॉल्स है वो उनसे मुशाबियत रखती है इन स्किन कलर। ये टेस्ट तो था बेसिकली सेग्रीगेशन रेशियल कलर की बेस के ऊपर, लेकिन अगर आप इसको खुद एनालाइज करें बेस्ड ऑन जो हमारा मुकदमा है कि कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड की मेंटालिटी के ऊपर, तो आपको हिंट्स कुछ ना कुछ मिल जाएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी रेशियल कलर को उस जो डोल के अंदर उनको नज़र आया था उससे ही डिनाई कर दिया, मतलब गिव अप कर दिया, अपनी आइडेंटिटी को विड्रॉ कर दिया। इन्फीरियर साइकोलॉजी के ऊपर इतनी डिस्कशन, इतनी आर्गुमेंटेशन, ये स्टडीज़ प्रेजेंट करने का मकसद एक ही था कि हम डायग्नोस कर रहे हैं कि आखिर उम्मत के साथ मसला क्या है, और साथ ही साथ कि ये इन्फीरियर साइकोलॉजी जो कि साहिल दीन ने डायग्नोसिस पेश किया है, जो मुकदमा रखा है, जो केस प्रेजेंट किया है, क्या वो वैलिड भी है या नहीं। मैंने आपसे कहा 1400 साल से बहुत लोगों ने आके प्रॉपर मुनज़्ज़म काविश की है। आप और मैं तुक्के पे नहीं कंफ्यूज हुए। 25 करोड़ पाकिस्तानी, 40 करोड़ इंडियन मुसलमान, 1.25 अरब दुनिया के मुसलमान कंफ्यूज हैं। आप समझ रहे हैं तुक्का लगा है, कोई दवाई हवा में एंथ्रैक्स फैली थी, हमारे दिमाग उड़ गए। बाकायदा साल ब साल, 100 साल ब 100 साल फलसफा सराहियत करता है, नस्लें की नस्लें तबाह होती हैं।
इसकी वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसके मुतबादिल में कोई केस प्रेजेंट करें कि ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है। और अगर आपको कोई केस नहीं मिलता तो माइनस माई केस। और ये चीज़ साबित करती है कि साहिल अदीम का ये केस जो है वो ना कि वैलिड है बल्कि बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट है, और जिसको बैक सिर्फ साइंस या स्टडीज़ या रिसर्चर्स नहीं कर रहे बल्कि कुरान पाक में भी इसके बेतहाशा सबूत मिल जाते हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है कुरान का वो आपको सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 5 में भी मिल जाता है।